rising in Bollywood. जब Greek goddess Aphrodite को challenge करते हुए Priyanka Chopra sizzled the screen in a sexy golden swimsuit. Bond girls emerging from the sea and scorching the screen became passé, with Priyanka flaunting her 10-on-10 figure in this shimmering swimwear in Dostana. उनके fans ही नहीं बल्कि पूरी audience अपनी पलकें झपकना भूल गई looking at this smoking hot babe. Priyanka is one of those girls who very luckily was always considered sexy without being a sex symbol. Her mesmerizing looks, sheer talent and an ever effervescent nature, ये सब बना देते हैं उनको instant fan favorite. अपनी मूवीज की एक impressive list के साथ, this Bareilly girl is definitely on her way to become a legend in her own right. सुपरस्टार्स सुपर लाइव्स के इस एपिसोड में हम आज देखेंगे एक म्यूजिक वीडियो से अपना सफर शुरू करने वाली इस स्मॉल टाउन गर्ल के बॉलीवुड हार्टथ्रॉब बनने की अमेजिंग स्टोरी। Priyanka, who actually belongs to Bareilly, a small town in Uttar Pradesh, shot to instant fame after winning the Miss India World Crown. पर इस पैजेंट में हिस्सा लेने से पहले वो नजर आई थी दलेर मेहंदी के एक म्यूजिक वीडियो साजन मेरे सतरंगी में। इस सॉन्ग को मॉडरेट सक्सेस मिलने के बाद भी इसका वीडियो अननोटिस्ड ही रहा और प्रियंका को सही मायनों में स्पॉटलाइट मिली फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में, where she was competing with Lara Datta and Dia Mirza. ब्यूटी पैजेंट्स की कैट फाइट्स के स्पाइसी किस्से तो सबने सुने हैं, बट वेरी फ्यू पीपल नो कि इस कंपटीशन के लिए प्रियंका को मेकअप में हेल्प किया था उनकी सबसे बड़ी कंपेटिटर लारा दत्ता ने। मिस वर्ल्ड बनने वाली इस फिफ्थ इंडियन ब्यूटी का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ। She spent her childhood in various towns in North India, including Bareilly and Lucknow. हाई स्कूलिंग के लिए यूएस जाकर प्रियंका बड़ी जल्दी लौट आई इंडिया। यूपी में स्कूलिंग पूरी करके वो निकल पड़ी टू द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई। Soon she dropped out of college to pursue her life in the glamour world. और देखते ही देखते अपने कॉन्फिडेंस के साथ पहले मिस इंडिया और फिर मिस वर्ल्ड बनकर प्रियंका निकल पड़ी अपने वर्ल्ड टूर पर। मिस वर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उन्होंने साइन की तमिल मूवी तमियन ऑपोजिट द राइजिंग साउथ इंडियन स्टार विजय इन 2002। 2003 में एक सेकंड लीड के साथ इस पंजाबी कुड़ी ने रखा बॉलीवुड में कदम। मूवी वॉज द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। The film was ridiculed by critics and commanded a lukewarm response from the audience. पर मूवी में प्रियंका को नोटिस किया गया उनके एक्टिंग टैलेंट के लिए। Then came the movie which was riding on the hype of two beauty queens cast along with the Casanova Khiladi, setting the screen on fire. With Akshay Kumar was Priyanka Chopra and Lara Datta in Raj Kavar's musical love triangle Andaz. खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ इन दो सुपर हॉट ब्यूटीज की स्टीमिंग हॉट केमिस्ट्री ने बना दिया अंदाज को एक ब्लॉकबस्टर। While everybody noticed Priyanka's hot on-screen presence in the movie, उनके नेचुरल एक्टिंग टैलेंट ने क्रिटिक्स को भी इम्प्रेस किया और ऑडियंस को भी। But reportedly most impressed was Bollywood's Casanova अक्षय कुमार, जिनके साथ बहुत जल्द प्रियंका नजर आने वाली थी काफी मूवीज में। अपनी नेक्स्ट मूवी में she was seen opposite Sanjay Dutt in Plan. Not only was she hot and irresistible in the movie, but she faced Sanju with unimaginable gut and confidence. This surprised even the biggest film pundits, जिन्होंने इस मूवी के फ्लॉप होने के बावजूद प्रिडिक्ट किया कि प्रियंका has a bright future. And the Desi girl never proved them wrong. 2004 में गुड्डू धनोआ की लूकवार्म किस्मत के बाद वो दिखी प्ले करती डैमसेल इन डिस्ट्रेस राजीव राय की असंभव में। But the year turned out to be special with her next two releases. मुझसे शादी करोगी opposite Salman and Akshay, and Aitraz opposite Akshay. मुझसे शादी करोगी had two of the hottest males, Salman and Akshay, chasing Priyanka. और डेविड धवन की इस लव राइट में मूवी के हिट होते होते तक उनका नाम को स्टार अक्की के साथ लिंक किया जाने लगा था और ऐतराज में अक्की के साथ scintillating steamy scenes करके पिगी ने इन रूमर्स को और हवा भी दे दी। Between Priyanka and Akshay, lots of rumors that they were involved. Unfortunately, what happened after all those rumors is that they stopped working together, and I think that's a pair that the audience would still like to see.
सुना है इन दोनों की ये केमिस्ट्री किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, और वो थी मिसेस अक्षय कुमार यानी ट्विंकल खन्ना। रूमर हैज इट कि ट्विंकल ने अक्की के पिगी के साथ मूवी करने पर लगा दिया बैन, और उस टाइम शूट हो रही मूवी वक्त के बाद ये दोनों कभी एक साथ नजर नहीं आए। पिगीज पोजीशन वाज चेंजिंग इन बॉलीवुड एंड सो वर हर लुक्स। उनकी नोज अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छे शेप में थी, लिप्स वर लुकिंग ज्यूसियर। पर जब एक प्लास्टिक सर्जन ने नेशनल टीवी पर यह क्लेम किया कि शी इज गॉन अंडर द नाइफ टू एनहांस हर लुक्स, प्रियंका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके बाद उन डॉक्टर साहब की तरफ से ऐसी कोई न्यूज नहीं आई। अक्षय कुमार के साथ वक्त, A Race Against Time और 2005 के एंड में आई ब्लफ मास्टर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। मगर जिस मूवी का सबको बेसब्री से इंतजार था वो मूवी थी डॉन का रीमेक, जिसमें वो प्ले कर रही थी रोमा, a role immortalized by the hot and gorgeous Zeenat Aman. Competition was tough और प्रियंका को भी पता था कि उनको बार बार ओरिजिनल रोमा से कंपेयर किया जाएगा। Her styling in the film was impeccable. She looked every bit the tough nut glam girl that she was playing. And to top it, उन्होंने मार्शल आर्ट्स में एक स्पेशल ट्रेनिंग भी ली और इस ग्रेस के साथ अपना कैरेक्टर परफॉर्म किया कि किसी ने ओरिजिनल रोमा को मिस ही नहीं किया। डॉन became one of the top grossers of the year. जो प्रियंका और शाहरुख का कॉम्बिनेशन है वो पहले कभी हमने देखा नहीं है। द केमिस्ट्री जो है उन दोनों के बीच इज रिलेटिवली अनएक्सप्लॉइटेड। ब्रांड प्रियंका was getting bigger and bigger. 2007 में उन्हें देखा गया सलामे इश्क में, अ मल्टी स्टारर। फिल्म को मिले मिक्स्ड रिव्यूज, पर हर रिव्यू में प्रियंका was complimented for her role. लव स्टोरी 2050 को बनने में लंबा वक्त लग रहा था। वही न्यूज ये भी थी कि समथिंग्स कुकिंग बिटवीन प्रियंका एंड हरमन बावेजा। मिस चोपड़ा एंड मिस्टर बावेजा वर सीन क्लबिंग टुगेदर काउंटलेस टाइम्स। प्रियंका ने अपने इंटरव्यूज में ना तो इस रिलेशनशिप से इनकार किया, ना ही कभी इसको खुलकर एक्सेप्ट किया। ये रूमर्स आते हैं और अगर कुछ क्लैरिफाई करने की जरूरत पड़ी मुझे या फिर लगा कि बहुत जरूरी है बोलना तो मैं हमेशा बोलूंगी। So in Bollywood terms, we can say कि प्रियंका and Harman were really good friends. 2008 में उनकी first release was the much awaited Love Story 2050. जितने साल इसको बनने में लगे, ये मूवी थिएटर में उतने दिन भी नहीं चली। सलमान के ऑपोजिट उनकी नेक्स्ट ब्रूस ऑलमाइटी इंस्पायर्ड गॉड टू सी ग्रेट हो को भी कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। उनकी अगली मूवीज चमकू और द्रोणा बोथ बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस। चमकू वाज मेड ऑन अ मॉडरेट बजट, पर द्रोणा थी एक मेगा बजट एपिक जिसका डेबिकल भी एपिक स्केल में हुआ। The movie was written off as one of the worst movies of the year. For प्रियंका, जिन्होंने इस मूवी के लिए सिख मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ली थी, it was a big blow. But rather than getting bogged down with the competition, Priyanka came back with a bang in Madhur Bhandarkar's fashion. I think Priyanka as an actress has grown by leaps and bounds, and I think we only have a lot of really, really good work from her coming up. नेशनल अवार्ड जीतने की खुशी में प्रियंका ने कोई पार्टी दी या नहीं, मगर हम आपको एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं कमर्शियल ब्रेक की। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि सुपर हॉट प्रियंका कैसे बनी देसी गर्ल। So don't go anywhere. वेलकम बैक टू सुपरस्टार्स सुपर लाइव्स। भैया लाइफ में ब्रेक्स बड़े जरूरी हैं। शोज में कमर्शियल ब्रेक और बाकी लाइफ में भी तरह तरह के ब्रेक्स जैसे स्पीड ब्रेकर्स। इसीलिए ज्ञानी लोगों ने कहा है कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। इस बार टूटने वाले थे दो क्यूट से हार्ट्स, प्रियंका चोपड़ा और हरमन बावेजा के। पिगी का मानना था कि हरमन को अपनी खुद की एक पहचान बनानी चाहिए, और लव स्टोरी 2050 के बाद से उसकी सिर्फ एक ही पहचान ये बन गई थी कि he is Piggy's boyfriend। बस हरमन चल पड़े नई पहचान बनाने और पिगी निकल पड़ी एज एन एक्टर अपनी नई पहचान बनाने। वैसे भी द्रोणा और लव स्टोरी 2050 के बाद उनको इसकी काफी जरूरत थी। She started looking for हटके movies and one such movie was विशाल भारद्वाज's कमीने, which became special for Priyanka because of many reasons. नायरोबी के प्लेराइट कजेतन बॉय की शॉर्ट स्टोरी रोहो से इंस्पायर्ड इस क्राइम थ्रिलर में शाहिद कपूर फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे थे डबल रोल। प्रियंका प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ महाराष्ट्रियन गर्ल इन कमीने। दोस्ताना फैशन के एकदम अल्ट्रा ग्लैमरस रोल्स के बाद दिस इज अ चवल चटपटी लड़की है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है मेकअप करने का, चोटी बना के निकल जाती है।
और अपने इस रोल को और भी कन्विंसिंग बनाने के लिए प्रियंका ने मराठी लैंग्वेज सीखकर अपने काफी सारे डायलॉग्स मराठी में बोले। ऐसे ही मूवी के एक सीन में उन्होंने स्कूटर भी खुद ही चलाने की जिद की एंड मेट विद एन एक्सीडेंट। प्रियंका का फेस इस एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो जाता अगर शाहिद ने स्प्लिट सेकंड में एक फिल्मी हीरो की तरह अपना हाथ उनके फेस और रोड के बीच न लगाया होता। और इस इंसिडेंट को भी गॉसिप सर्कल्स में काफी बढ़ावा मिला, मेकिंग their link up story even stronger. So yeah, I've had a lot of fun working with her. I think Sweetie and Guddu have turned out really, really sweet, really cute. It's come out quite nice. करीना के साथ ब्रेकअप के बाद शाहिद's name was being constantly linked up, from his lucky charm Amrita Rao to Tennessee सानिया मिर्जा और उनकी किस्मत कनेक्शन को स्टार विद्या बालन। पर कमीने के लिए 6 पैक एब्स डेवलप करने वाले शाहिद अब वापस अपनी सिंगल रेडी टू मिंगल स्टेटस फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे थे। Allegedly, Priyanka was also just out of her relationship with Harman और बहुत जल्द both were spotted together. कभी डिनर पर तो कभी पार्टीज में P.F. and Shax were painting the town and gossip columns red. But soon there was trouble in paradise, and a little after the release of Kameene, प्रियंका और शाहिद के इस alleged relationship का भी end हो चुका था। पर ना उन्होंने अपने relationship के बारे में बात की और ना ही उन्होंने breakup की बात की। Tech savvy Priyanka is one of the first Bollywood stars to join a microblogging site. बहुत लोग कहते हैं कि एक एक्टर का एनिग्मा चला जाता है उससे, या लेकिन मुझे लगता है कि एक तरह से मेरा डायरेक्ट एक्सेस है लोगों के लिए। अगर लोग कुछ कहना चाहते हैं मुझे ट्वीट कर दें, अगर लोग मुझसे बात करना चाहते हैं मुझे ट्वीट कर दें। मैं जो अपने दिमाग में कहना चाहती हूँ मैं डायरेक्टली कह देती हूँ। Besides the news of her link-ups and breakups, प्रियंका और बॉलीवुड की हॉट फेवरेट एक्ट्रेस कटरीना के बीच कैट फाइट की न्यूज़ भी सुर्खियों में बनी हुई है। हम लोग कंटेम्प्रेरीज हैं, हम दोनों ने सेम साल डेब्यू किया है एंड हम लोग कथक क्लासेस भी साथ में जाते थे। इनके बीच एक अवार्ड फंक्शन में हुई अनबन को कई टैबलॉइड्स ने खूब स्पाइसी बनाकर पब्लिश किया। बॉलीवुड की इन दो सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस के बीच इस जंग की शुरुआत कब हुई ये तो पता नहीं, पर अगर जंग के रीजंस पर नजर डाले तो एक बात जरूर पक्की हो जाती है कि इस वॉर का सीज फायर इतनी जल्दी होता नजर नहीं आता। कटरीना अक्षय कुमार के साथ वैसी ही सक्सेसफुल जोड़ी बना चुकी हैं जैसी कभी अक्षय प्रियंका की हुआ करती थी। More recently, Katrina became the face of a mobile company Priyanka used to endorse, and Miss Piggy Chop struck back by replacing Katrina in Siddharth Rajanan's अनजाना अंजानी। दो बाद में इनमें सीज फायर की न्यूज सुनने में आती रही, मगर कहने वाले कहते हैं कि इनके बीच कैट फाइट के शोले अब भी भड़क रहे हैं। अब बॉली हॉटीज की इस कैट फाइट का क्या अंजाम होगा ये तो खुदा जाने। But this controversy gained momentum again when Karan Johar announced Dostana 2, जिसमें शायद प्रियंका की जगह नजर आएंगी कटरीना। And the movie is rumored to have one face-off scene between Katrina and Priyanka. 2009 रहा द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ईयर इन प्रियंका's लाइफ। एक तरफ तो फैशन में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से शी वाज गार्नरिंग अवार्ड्स एंड एक्कलेड्स इन एवरी अवार्ड फंक्शन। दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी alleged अफेयर्स, कभी कैट फाइट्स के किस्से और कभी उनके टैलेंट पर पब्लिकली क्वेश्चन किया जाना। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला एक अवार्ड फंक्शन में जहां उनको मिला फैशन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। She was yet to express her pleasure जब उनकी नेक्स्ट मूवी के डायरेक्टर आशुतोष ने अवार्ड फंक्शन के स्टेज से ही उनके अवार्ड जीतने पर सवाल खड़ा कर दिया। But being a hardcore professional that she is, Priyanka maintained a dignified silence and still worked hard for Ashu's next What's Your Rashi, जिसमें उन्होंने ऐसे किए 12 different roles depicting girls of 12 different sun signs. I try and become a different person for each film because I don't want people coming in and watching the film and say, oh, that's Priyanka Chopra. The movie failed to charm the box office, पर प्रियंका के ये 12 roles सबको बेहद पसंद आए। Today, Priyanka's honesty, passion and dedication make her one of the most powerful youth icons. वो आज के youth की aspirations की आवाज हैं, and this gives her an inevitable brand value. पिछले 2-3 सालों में प्रियंका की brand value में tremendous growth हुई है। Amongst her fans, she emerges a winner, and hence youth को target करते हर big brand को अपने endorsement के लिए चाहिए इस breezy beauty का साथ। From mobile phones to motorbikes, cosmetics to jewelry and luxury accessory brands, प्रियंका कर रही हैं सब कुछ endorse।
इतना ही नहीं, इसी बीच हो गई उनकी फ्रेंडशिप हॉलीवुड हंक जेरार्ड बटलर से, जिनके इंडिया आने पर पिगी ने दी थी एक स्पेशल पार्टी अपने घर पर। और भैया ये पार्टी इतनी देर तक चली कि पिगी के नेबर्स ने पुलिस में कंप्लेंट मार दी और पुलिस ने आकर उनके रंग में भंग कर दिया। इसके बाद पिगी ने दिया अपने फैंस को एक जबरदस्त सरप्राइज when she made a comeback with her second release in 2010, अनजाना अनजानी, जिसमें प्रियंका के ऑपोजिट थे नेशंस करंट हार्टथ्रॉब कैसानोवा रणबीर कपूर। मगर सबसे ज्यादा चर्चा रहा अनजाना अनजानी में कियारा यानी प्रियंका चोपड़ा के हॉट शॉट्स का। लेगी लेस प्रियंका ने हॉट शॉट्स को बना दिया एक रेज। सैडली द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट द मूवी इटसेल्फ। अनजाना अनजानी बॉक्स ऑफिस पर कोई मैजिक कर पाने में रही अनसक्सेसफुल डिस्पाइट हैविंग 2 बैक-to-back फ्लॉप्स। With an impressive lineup of movies, Priyanka definitely looks more confident than ever. ब्रेक के बाद हम बताएंगे कैसे शुरू हुई सुपर हॉट प्रियंका की बड़ी गहरी फ्रेंडशिप किंग खान शाहरुख खान से। Keep watching Superstars Super Lives. सुपरस्टार्स सुपर लाइव्स में आज की सेंसेशनल सुपरस्टार हैं द वाउसम ब्यूटी विद अ फैंटाबुलस इंटेलेक्ट मिस प्रियंका चोपड़ा, जिनके घर पर 2011 ने नॉक किया जरा अलग अंदाज में। ईयर की शुरुआत में ही उनके घर पर पड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड और बजाय आईटी वालों की रिपोर्ट को जानने के लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पर रहा कि आखिर अर्ली मॉर्निंग पीसी के घर पर पड़ी इस रेड के वक्त शाहिद कपूर मियां वहां क्या कर रहे थे। प्रियंका की माने तो शाशा वहां उनको मॉरल सपोर्ट देने आए थे। खैर बहुत जल्द ये न्यूज हो गई आई गई because everybody was talking about Priyanka's tour de force performance in her upcoming movie सात खून माफ। कमीने के बाद विशाल भारद्वाज के साथ ये थी प्रियंका की सेकंड मूवी, जिसमें उन्होंने प्ले किया था एक वुमन की लाइफ के अलग अलग फेजेस को। इस मूवी में उनका सामना था ब्रिलियंट एक्टर्स लाइक नसीर, अन्नू कपूर, इरफान से, मगर प्रियंका किसी भी फ्रेम में उनके सामने कमजोर पड़ती नजर नहीं आई। Priyanka's unforgettable performance in this dark tale of romance, deceit and mystery was lauded by the critics, जिनका मानना था ये प्रियंका की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। Sadly, the movie couldn't live up to all the hype that was created during its release. But nevertheless, प्रियंका खुश थी because she got to do a film जिसने उनको as an actress immortal बना दिया है। Her next step can be called the casting coup of this year. के जो ने जब से अनाउंस किया था अग्निपथ का रीमेक, everybody wanted a piece of the cake. और इस रेस में बाजी मारी प्रियंका चोपड़ा ने because किसी भी कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेने में उनकी टक्कर की एक्ट्रेस बॉलीवुड में मिलनी नामुमकिन ना सही, मुश्किल जरूर है। इसी बीच डॉन 2 में एक बार फिर रोमा का कैरेक्टर निभाते निभाते प्रियंका की बड़ी गहरी फ्रेंडशिप हो गई है किंग खान शाहरुख खान से। न सिर्फ वो अब उनकी हर पार्टी की शान बढ़ाती नजर आती हैं, बल्कि पिगी ने किया है SRK के मेगा एम्बिशियस प्रोजेक्ट रावण में भी एक फ्रेंडली अपीयरेंस। एंड वंस बादशाह खान केम टू नो अबाउट प्रियंका's inclination towards music, उन्होंने पिगी को गिफ्ट किया एक एक्सपेंसिव इंपोर्टेड गिटार भी। और ये गिटार मानो था प्रियंका के लिए उनके अगले स्टेप की टिकट, बिकॉज बहुत जल्द सुनने में आया कि प्रियंका को एक इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी ने साइन कर लिया है एक म्यूजिक एल्बम के लिए। अपनी ब्यूटी के साथ साथ अपने प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन के लिए जाने जाने वाली प्रियंका loves connecting with her fans on her microblogging page. No wonder within no time वो बन गई है the first Bollywood star to reach 1 million followers on her page. इस naturally talented beauty ने अपने hard work और confidence के साथ बॉलीवुड में अपना जो मुकाम बनाया है, उसे देखकर तो हम बस यही कह सकते हैं कि मिस देसी गर्ल is here to stay and rock the world. आज के एपिसोड में बस इतना ही। We'll see you again with yet another super episode of Superstars Super Lives. You keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.